بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائی اور اپنے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ تو درود و سلام نازل فرما تیرے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتہ داری کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو تاکہ وہ تمہارے اعمال کو درست کرے اور تمہارے گناہ معاف کر دے۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ بے شک سب سے سچا کلام اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بری چیز دین میں ایجاد کردہ چیزیں ہیں، اور دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے۔ اے مومنو، آپ لوگ ماہ رجب کے آخری حصے میں ہیں جو خیر و برکت اور حرمت والا ہے۔ یہ مہینہ باقی خیر و برکت کے مہینوں کے لیے کنجی ہے، چنانچہ سال ایک درخت کی مانند ہے، اس میں پتیاں رجب کے مہینے میں آتی ہیں، اس کی شاخیں شعبان میں پھلتی پھولتی ہیں، اور اس کے پھلوں کے توڑنے کا وقت رمضان کا مہینہ ہے، اور یہ پھل اہل ایمان توڑتے ہیں۔ دل ایک باغ کی طرح ہے، اس کے پھل اسی وقت نشو نما پا کر بڑے ہوں گے جب اس کی سینچائی صاف شفاف پانی سے کی جائے گی اور زمین کو صاف کیا جائے گا، اور دل کی سینچائی استغفار ہے اور اس کی صفائی توبہ ہے۔ چنانچہ جو شخص اپنے نامہ اعمال کو گناہوں کی علائشوں سے سیاہ کر چکا ہے، اسے چاہیے کہ وہ ان ایام میں توبہ و استغفار کے ذریعے اسے سفید کر لے، اور جو شخص سستی اور کاہلی میں اپنی عمر اب تک ضائع کر چکا ہے، اس کو چاہیے کہ باقی ماندہ عمر کو قیام اللیل اور دن میں روزہ رکھنے کے لیے غنیمت جانے، اور جو حرام سے بچ گیا وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ لہذا قلب و جگر سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، توبہ کے ذریعے اس کی قربت حاصل کرو اور اس کی طرف رجوع کر کے اس کا محبوب بندہ بن جاؤ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دل اس توبہ نصوح کی طرف آمادہ نہ ہو جو روشنیوں کا باغ ہے اور نیککاروں کے لیے دلوں کی خوشی و مسرت ہے، اور دونوں جہانوں کے پالنہار نے توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بتایا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بھلا ایک کمزور و لاچار بندہ رب کی خوشی کا منظر دیکھ کر کیسے خوش نہیں ہو سکتا ہے جو رب نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس سے چٹی البیابان میں اپنی گم شدہ سواری مل جاتی ہے۔ بندے کی حقیقی زندگی اس کا اپنے رب کے ساتھ رشتہ استوار رکھنے اور اس کی طرف شوق و محبت اور غلامی اور بندگی کے جذبے کے ساتھ دوڑنے میں ہے، اور صفت بندگی کی معراج یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے توبہ کرنے والا اور اس کی طرف رجوع کرنے والا ہو، گناہوں سے دور رہتا ہو اور گناہوں کی غلامی سے آزاد ہو کر اللہ سبحانہ کی رحمت کی طرف لپکتا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً وہ بار بار رجوع کرنے والوں کو ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا ہے۔ اللہ نے ہم پر بے حد رحم فرمایا، چنانچہ اس نے ان کے ساتھ بھی اپنا رشتہ جوڑا جو گناہوں کے صحرا اور غفلت و لاپرواہی کے دلدل میں بہت آگے نکل گئے ہوں، ان کو اپنی طرف منسوب کیا، ان کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیے، اور انہیں انتہائی لطیف اور عظیم اسلوب میں مغفرت کی خوشخبری سنائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دو کہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے۔ استغفار توبہ کے لیے ایک لازمی شیء اور اس کا دروازہ ہے، اور اس کے مختلف درجات اور حالات ہیں۔ چنانچہ ہمارے ماں باپ آدم و حوا کا استغفار گناہ کا اعتراف اور خالق ارض و سما سے شرم و حیا تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، دونوں نے کہا کہ ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا، یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دونوں بھائی موسیٰ و ہارون کا استغفار صلہ رحمی کرنا اور رب العالمین کے پیغام کو پہنچانے میں صدق و راستی اختیار کرنا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دونوں خلیل کا استغفار شفقت اور رحمت کے اظہار تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، خلیل علیہ السلام نے فرمایا، پروردگار مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا، پروردگار میری یہ دعا قبول فرما، پروردگار مجھے، میرے والدین اور جملہ مومنوں
को इस दिन माफ फरमाना जब हिसाब लिया जाएगा। और जब सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिग़फ़ार किया तो ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह तो आयशा के अगले पिछले पोशीदा व अलानी हर तरह के गुनाहों को बख्श दे। जब इस दुआ से आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खुश हुई तो आपने फरमाया, कसम अल्लाह की ये दुआ मैं हर नमाज में अपनी उम्मत के लिए करता हूँ। चुनांचे हम में से हर शख्स के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ इस्तिग़फ़ार की है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, और अगर वाकई ये लोग जब उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था आपके पास आते, फिर अल्लाह से बख्शिश मांगते और रसूल उनके लिए बख्शिश मांगते तो अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला निहायत मेहरबान पाते। इस्तिग़फ़ार आसमान से बारिश के नुज़ूल का जरिया, मालो औलाद बरकत का सबब, अच्छे मालो मता और ताकतवर जिस्म बदन का राज और रहमान और रहीम के साथ दोस्ती और मोहब्बत का वसीला है। इरशाद बारी ताला है, तो मैंने कहा अपने रब से माफी मांग लो, यकीनन वो हमेशा से बहुत माफ करने वाला है। और तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा और तुम्हें खूब पैदर पे माल और औलाद में तरक्की देगा और तुम्हें बागात देगा और तुम्हारे लिए नहरें निकाल देगा। अपने रब से गुनाहों की बख्शिश तलब करो, फिर उसकी तरफ ताइब हो जाओ, अपने रब से माफी मांगो, फिर तौबा करो। इस्तिग़फ़ार अल्लाह के बरगज़ीदा मुक़र्रब फरिश्तों का अहले ईमान से रिश्ता जोड़ने का जरिया है। इरशाद बारी ताला है, वो फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं और जो उसके इर्द गिर्द हैं अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करते हैं और उस पर ईमान रखते हैं और उन लोगों के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं जो ईमान लाए। ऐ हमारे रब, तूने हर चीज को रहमत और इल्म से घेर रखा है, उन लोगों को बख्श दे जिन्होंने तौबा की और तेरे रास्ते पर चले और उन्हें भड़कती हुई आग के अजाब से बचा। ऐ हमारे रब, और उन्हें हमेशा रिहाइश वाली उन जन्नतों में दाखिल कर जिनका तूने उनसे वादा किया है, और उनको भी जो उनके बाप दादाओं और उनकी बीवियों और उनकी औलाद में से लायक है। बिलाशुबा तू ही सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। और उन्हें बुराइयों से बचा, और तू जिसे उस दिन बुराइयों से बचा ले यकीनन तूने उस पर मेहरबानी फरमाई, और यही तो बहुत बड़ी कामयाबी है। इस्तिग़फ़ार अपने महबूद और परवरदिगार की नेमतों के कुफ्र व इनकार का एतराफ व इजहार है और रब्बुल आलमीन की बंदगी के हुकूक की अदायगी में कमी व कोताही का ऐलान है। जिनांचे जो अल्लाह की पाकी बयान करता है वो तस्बीह बयान करने वाला हुआ, जो उसकी ताज़ीम और किबरियाई बयान करता है वो तकबीर कहने वाला हुआ, और जो हम्दो सना बजा लाता है वो तारीफ करने वाला हुआ, और जो उसकी वहदानियत को बयान करता है वो तहलील करने वाला हुआ। इसीलिए जो तस्बीह व तहमीद और तकबीर को एक साथ 33 बार कहता है और 100वीं बार ही कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह के अलावा कोई माबूद बहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, सारी बादशाहत उसी की है, हर तरह की तारीफ का वही सजावार है और वो हर चीज पर कादिर है। उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, गरचे समुंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। जो शख्स नमाज पढ़ रहा होता है वो इस्तिग़फ़ार कर रहा होता है। इरशाद बारी ताला है, और रात के आखिरी हिस्से में इस्तिग़फ़ार करने वाले रुकू खुशू का मकाम है, यहाँ भी इस्तिग़फ़ार है। ए अल्लाह हमारे रब तेरी जात पाक है, तमाम किस्म की तारीफें तेरे लिए है, अल्लाह तुम्हें माफ फरमा। सजदा खुदू का मकाम है, यहाँ भी इस्तिग़फ़ार है। इसमें बंदा दुआ करता है जिसका तर्जुमा है, ए मेरे रब मेरे तमाम गुनाह छोटे बड़े अव्वल व आखिर अलानी और पोशीदा सबको बख्श दे। इसी तरह दोनों सजदे के दरमियान भी इंसान शिकस्ता दिल कैदी की तरह इस्तिग़फ़ार करता है। बंदा दुआ करता है जिसका तर्जुमा ये है, ए मेरे रब मुझे माफ फरमा, ए मेरे रब मुझे माफ फरमा, ए मेरे रब मुझे माफ फरमा। सिद्क़ व सच्चाई का पैगाम लेकर आने वाले नबी ने तय करे तस्दीक व तस्लीम सिद्दीक़ अकबर को नमाज पढ़ने के लिए ये दुआ सिलाई, या अल्लाह मैंने अपने नफ्स पर खूब जुल्म किया और गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता, लिहाजा तू मुझे अपने फज़ल व करम से माफ फरमा, बेशक तू बहुत ज्यादा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। जब आदमी नमाज से फारिग होता है तो उसके लिए भी 3 बार इस्तिग़फ़ार कहना मसनून करार दिया गया है। रोजा सबर करने वालों का इस्तिग़फ़ार है और रब्बुल आलमीन की तरफ से इआनत है। इरशाद बारी ताला है, सबर रोजा और नमाज के जरिए मदद तलब करो। इसी तरह मग़फ़िरत और माफी को रमजान, अरफा और आशुरा वगैरह के रोजे के साथ जिक्र किया गया है। सरवर कायनात रहमत दो जहां जब अपनी मजलिसों में होते तो एलानिया इस्तिग़फ़ार करते थे, जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, हम एक मजलिस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 100 मरतबा यह दुआ पढ़ते हुए सुनते थे, या अल्लाह मुझे माफ फरमा, मेरी तौबा कबूल कर, बेशक तू बहुत ज्यादा कबूल करने वाला और रहम करने वाला। और सय्यदुल इस्तिग़फ़ार बंदे और अल्लाह के दरमियान अहद व पैमान की तजदीद है। इसलिए बंदा अल्लाह से ये दुआ करता है, या अल्लाह तू मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद बहक नहीं, तूने मुझे पैदा किया और मैं तेरा बंदा हूँ और तेरे अहद व पैमान पर हत्तल मक़दूर कायम हूँ। मैं अपने अमाल की बुराई से पनाह मांगता हूँ, तेरी नियामतों का एतराफ़ करता हूँ और अपने गुनाहों का भी एतराफ़ करता हूँ, लिहाजा तू मुझे माफ फरमा दे, क्योंकि तेरे सिवा गुनाहों को कोई माफ नहीं कर सकता है। या अल्लाह मेरे लिए और आप सबके लिए कुरान को बाबरकत बना दे और कुरानी आयात और हकीमाना नसीहतों के जरिए हम सबको नफा पहुँचाए, बेशक वो बहुत बड़ा सखी, जवाद और करीम है।
तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने किताब मुहकम को नाजिल फरमाया और जो नेकोकारों का वली है। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं, जिनको अल्लाह ने दुनिया के लिए रहमत और गवाही देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। या अल्लाह तो अपने बंदे और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम नाजिल फरमा। मुसलमानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने बंदों में से एक बंदे को बस इस कदर इल्म से नवाजा जो उसके इल्म की वसअत के सामने समुंदर में परिंदे के चोंच मारने की मिकदार के बराबर भी नहीं है। उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो बादियुल अम्रे में मूसा कलीमुल्लाह को नागवार गुजरे। चुनांचे उस अल्लाह के बंदे खिदर ने फकीरों की कश्ती में सुराख करके उन्हें जालिम व जाबिर बादशाह के जुल्म से निजात दिलाई और ये मामला खैर वाला साबित हुआ। और इसी तरह अल्लाह के बंदे ने बज़ाहिर एक ऐसे काम का इर्तिकाब किया जो मूसा कलीमुल्लाह पर गिरा गुजरा। उसने एक बज़ाहिर मासूम जान को कत्ल कर दिया। अगर वो मजीद जिंदा रहता तो आक़िबत व अंजाम के लिहाज से बुरा होता। इस मामले में भी बेहतरी साबित हुई। इसी तरह अल्लाह के बंदे ने बज़ाहिर बगैर किसी उजरत और ज़ाहिरी नफा के एक द्वार को खड़ा कर दिया। इसमें कमीने शख्स से यतीम के माल की हिफाजत थी। इस काम में भी बेहतरी साबित हुई। तो जरा सोचे कि हमारी क्या हैसियत है रब्बुल आलमीन के उन अफ़आल व अमाल के सामने जो क़ज़ा व क़दर के मुताबिक मखलूक़ात में जारी व सारी है और जो कमाले इल्म, कुदरत, हिकमत और तदबीर पर कायम है। वो पाक है, इंतहाई बारिक भी और खबर रखने वाली जात है। इरशाद बारी तआला है और हमने इस कुरान में लोगों की हिदायत के लिए हर किस्म की मिसाल बयान की है और इंसान सबसे ज्यादा झगड़ालू है। अल्लाह अज़्ज़ व जल अज़ीम शान वाला और मजबूत सल्तनत व बादशाहत वाला है। जो चाहता है करता है और जो इरादा करता है उसके मुताबिक फैसला करता है। इरशाद बारी तआला है, क्या वो देखते नहीं कि हम उनके लिए जमीन को उसकी तमाम अतराफ से घटाते जा रहे हैं और अल्लाह फैसला फरमाता है, उसके फैसले पर कोई नजरसानी करने वाला नहीं और जल्द हिसाब कर लेने वाला है। अगर अल्लाह ताला जमीन व आसमान की तमाम मखलूकात को भी अजाब मुब्तला कर दे तब भी वो जालिम नहीं होगा, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। और अगर अल्लाह लोगों से उनके अमाल पर गिरफ्त करता तो सतह जमीन पर कोई जानदार ना छोड़ता, लेकिन वो उन्हें एक वक्त मुकर्रर तक ढील देता है। बस जब उनका वक्त मुकर्रर आ जाएगा तो बेशक अल्लाह अपने बंदों को खूब देख रहा। कोई भी मुसीबत नाजिल होती है तो गुनाहों की वजह से होती है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, खुशकी और तरी में लोगों के अमाल के सब से फसाद फैल गया है ताकि अल्लाह उन्हें उनके बाद अमाल का मजा चखाए ताकि वो बाज आ जाए। जान लो कि आफत जब नाजिल होती है तो सिर्फ जालिमों को नहीं पहुँचती बल्कि सबों को लायक होती है। अलबत्ता रोज़े क़यामत लोगों को उनकी नियतों के मुताबिक उठाया जाएगा। चुनांचे नियतों की दुरुस्ती के मुताबिक वहाँ बाद की क़ुर्बत इलाही हासिल होगी तो बाद को अजाब में डाला जाएगा, बाद अल्लाह के बरगज़ीदा साबित होगा तो बाद शक़ी व बदबख्त करार पाएगा। शुहदा अल्लाह के मुक़र्रब हो जाएंगे जबकि नाफरमानों के लिए हलाकत मुक़द्दर हो जाएगी। ये उस अल्लाह का फैसला है जो क़ुव्वत व ग़लबे वाला, हिकमत वाला, हर चीज की खबर रखने वाला है और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते है। तकदीर की हैरत अंगेज हिकमतों में से ये भी है कि मुसीबत ज़दा शख्स का ईमान मजबूत हो जाता है और जो आफियत में होता है वो कुफरान नियामत और सरकशी पर उतर आता है। चुनांचे आप खंडरात और मलबे के नीचे सिर्फ और सिर्फ अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और अल्लाह की बुजुर्गी और बड़ाई की सदाएं सुनेंगे। बेशक आपका रब आपको अपनी रजा हासिल करने का मौका फराहम करता है, आपको मोहलत देता है, आपको आजमाता है कि लोगों के साथ आपका तामुल रहम करम और उखवत भाईचारगी की बुनियाद पर है या नहीं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया, रहम करने वालों पर रहमान रहम फरमाता है, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। लिहाजा आपको अल्लाह का वास्ता अपने भाइयों का ख्याल रखें, उनके लिए दुआएं करें, उनकी मदद करें और हलाकत से उनकी निजात का जरिया बने। जान लें कि अल्लाह ताला और उसकी किसी मखलूक के दरमियान ना कोई क़राबतदारी है और ना रिश्तेदारी, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसाफ का मामला करता है और अदल के साथ फैसला करता है। उसके मीज़ान में जर्रा बराबर अमल भी पोशीदा नहीं रहता, वो मुजरिम को जरूर सजा देता है, अगरचे कुछ वक्त के बाद ही सही। लिहाजा अल्लाह से डरें, अल्लाह का खौफ खाएं, तन्हाइयों में गुनाहों के इर्तिकाब से बचें, अपनी नीयतों को दुरुस्त करें, अपने बातिन की इस्लाह करें, गुनाहों से बचें, शायद कि अल्लाह पर रहम खाए और आपको दरगुजर व माफ कर दे। अहले इल्म व मारिफत के यहाँ ये बात मालूम है कि इस्तिग़फ़ार से बढ़कर कोई चीज नुज़ूल रहमत व बरकत का सबब नहीं, ज़बान इज़्तिरार व मजबूरी से बढ़कर कोई चीज रब की नुसरत व मदद के नुज़ूल का जरिया नहीं, और नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम जैसी कोई आला चीज नहीं जो आसमान की तरफ जाती हो। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है सबसे ज्यादा अमन व अमान वाले, दुरूद व सलाम नाजिल हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह के बंदो, सच्चे लोगों के पेशवा अहले तौहीद व इखलास के इमाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो जैसा कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब में तुम्हें इसका हुक्म दिया है। इरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह और उसके रसूल और उसके सब फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते रहते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। या अल्लाह, तो अपने बंदे अपने रसूल और अपने खलील मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम नाजिल फरमा। या अल्लाह, उनके चारों हिदायत याफ्ता खुलफा अबू बकर, उमर, उस्मान, अली से राजी हो जा जो हिदायत के इमाम थे, हक के साथ उन्होंने फैसला किया और उस पर अमल पैरा भी रहे। उनके अलावा दीगर तमाम
صحابہ سے بھی راضی ہو جا اور اپنی بخشش و مغفرت کی بارش کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہم تمام سے بھی راضی ہو جا۔ یا اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور اہل شرک کو مغلوب کر اور اپنے مومن بندوں کی مدد فرما اور دین کے دشمنوں کو تو ہلاک و برباد کر۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے ملک میں امن و امان عطا کر، ہمارے ائمہ و حکمرانوں کی اصلاح فرما اور انہیں بہترین مشیر کار عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے امام کو خیر و بھلائی کے کاموں کی توفیق دے، ہدایت کی توفیق دے۔ یا اللہ تو انہیں نصیحت کرنے والے بہترین عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے امام اور ان کے ولی عہد کو خیر و بھلائی کے کاموں کی توفیق دے اور اس میں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے قدم کو ثابت قدم رکھ۔ اللہ ظالموں پر ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے علانیہ پوشیدہ یا اور جس گناہوں کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے ان سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تو ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر۔ یا اللہ تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کا مددگار بن جا۔ یا اللہ ان پر تو رحمت نازل فرما۔ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما اور ان سب کو معاف فرما اور ہم سب پر رحم فرما۔ یا اللہ تو نے جو ہم پر نازل فرمایا ہم اس پر ایمان لے کر آئے، اس کی اتباع کی۔ بے شک اللہ رب العالمین عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں اور ناشائستہ حرکتوں ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بس اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، وہ تمہیں یاد رکھے گا اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرو، وہ مزید نوازے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔